So hello everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So we all have heard people say the day of examination is one day that decides your whole future. But I believe in something different. It is not actually the day of examination that matters this much, but it is actually every second, every minute, every hour, every day that you put in an effort toward your goal that actually matters. But still the day of examination is very important. That is why I will try to give you a probable time at which you can see the notification and phase 1 of examination. But ये date क्यों important है और किसके लिए important है? See, there are two type of people. People 1, the people who wait कि okay नोटिफिकेशन की प्रोबेबल डेट मुझे पता हो, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड कि इफ आई नो कि आफ्टर 3-4 मंथ आई विल बी सीइंग द एग्जामिनेशन का फेज 1, अकॉर्डिंगली इन दिस मच टाइम आई विल डू सब्जेक्ट 1, इन दिस मच टाइम आई विल डू सब्जेक्ट 2. बट the second type of people who are waiting ki okay once notification is out, after 1 week I'll decide ki which source I should refer to. उसके बाद I will decide कि कितना सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ो. राइट, रिवीजन का कोई प्लान नहीं है. बट रिगार्डलेस, क्योंकि डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत जरूरी नहीं है, मोस्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट होती है फॉर बेटर प्लानिंग एंड बेटर प्रोबेबिलिटी कि किस टाइम तक मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए. उसके लिए आई विल ट्राई टू गिव यू वन डेट. So in 2023, if I talk about the probable date of examination or time of examination, so here you can see, उससे पहले हमें ट्रेंड देखना होगा पास्ट ईयर्स का. If I talk about year 2015, यहाँ दिसंबर 2014 में नोटिफिकेशन आ गई थी, फेब 2015 में एग्जाम था. अकॉर्डिंगली यू कैन सी द पास्ट. तो यहाँ देखो दिसंबर, मार्च, जून, मार्च, मई, जैन, ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, ट्रेंड नहीं है, सो दैट वी आर एबल टू नो कि ओके दिस टाइम तक नोटिफिकेशन आती है. बट if I talk about 2021 and 2022, that is very important to note. यहाँ नोटिफिकेशन कब आ रखी है? जुलाई में. 2022 में कब आ रखी है? अगेन जुलाई में. इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, तो यहाँ देखो सितंबर में एग्जाम हो गया था, यहाँ सितंबर में एग्जाम हो गया था. बेस्ड ऑन दिस probability है, again I am saying probability. See, exact date of examination I cannot give you जब तक actual notification नहीं आती है. So here you can see 2023 में भी we can expect कि जुलाई में notification आ जाए, मे बी लेट जुलाई में आए, बट फेज 1 हो सकता है कि सितंबर में हो. अगेन एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगी, यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट डेट. बट प्लीज प्लान ऐसे करो अपनी स्टडी को कि एग्जाम यहाँ पे है. सो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को. द टू टाइप ऑफ पीपल वी वर टॉकिंग अबाउट. सो यहाँ पे देखो, वन थिंग यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ, योर एक्शन टुमारो, योर रिजल्ट टुमारो, नॉट योर एक्शन बट योर रिजल्ट टुमारो, दैट इज नॉट समथिंग टोटली आउट ऑफ योर हैंड. आप जो अभी कर रहे हो, योर एक्शन टुडे विल डिफाइन योर रिजल्ट्स टुमारो. अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी है, मे बी मेरिट की, नॉन मेरिट की, किसी सब्जेक्ट की, यू हैव कंप्लीटेड ARD स्टैटिक, और लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड द होल स्टैटिक. इफ यू आर somebody now who is preparing on this track, you are on very right track, and please continue this. But again, there are some people who are not preparing at all. They are waiting कि okay एक बार notification आ जाए, then I'll see. उनके लिए I would say थोड़ा सा warning है. See, when you'll start preparing ना, the other people will already be in a phase where they'll be revising. So you are much behind your competition and you are falling far behind. जितनी late start करोगे उतने ही दूर होंगे तुम अपने goal से. With this in mind, it is my humble request, if you start right now, this is a high time, please do start. The early the better, right? But what about the people who are preparing for other examination? RBI यहीं पे है. So if I'm preparing for RBI NABARD, what should I do? See, you have the date of RBI in your hand. You have a golden opportunity in your hand. You are not doing something wrong. Please focus on the preparation and completing the syllabus as well as revising the syllabus for the RBI examination. डोंट बी वरीड कि मैं नाबार्ड के लिए कुछ नहीं कर रहा, क्या मुझे आधे 1 घंटा पढ़ लेना चाहिए नाबार्ड के सब्जेक्ट भी. सी द सिलेबस दैट यू आर प्रिपेयरिंग ना, द क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश दैट यू आर डूइंग, ऑल्सो इफ यूर समबडी ESI कर ली है, पहले ही फेज 2 के लिए कर लिया है, GA तुम कर रहे हो, सो यू आर कंप्लीटिंग 80% ऑफ ARD, नॉट ARD, नाबार्ड, वेरी गुड. The only subject that are differing is the ARD.
right? So focus on the RBI for now. Once your RBI cycle is completed, उसके बाद phase 1 ARD complete करना. Once you are done with this, अगर time है तो phase 2 के according भी सारे chapter कर लेना, otherwise leave some chapter for phase 2. phase 1 के लिए जो most scoring chapters है उनको अच्छे से prepare करना. Then जब एक बार फेज 1 हो जाए उसके बाद अपना 100% देके डू कंप्लीट द सिलेबस. बट फॉर नाउ वरिंग टू मच अबाउट नाबार्ड इज अ रॉन्ग थिंग. Similarly, if you're preparing for some other examination like other banking examination, right, or let's say any government body examination, my humble request is, if you have the date ना कि मेरा examination इस time पे है, don't waste or don't feel like okay I should get distracted. इस चीज को मैप करो कि व्हाट आर द कॉमन सब्जेक्ट. क्या जीए उस एग्जाम में आ रही है, क्या क्वांट रीजनिंग इंग्लिश उस एग्जाम में आ रही है. आर यू प्रिपेयरिंग इन दिस सब्जेक्ट्स, आर यू डन विद दिस सब्जेक्ट्स. इफ यू आर डन विद दिस सब्जेक्ट, आप फ्रेशर नहीं हो, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, बट वट यू हैव डन, थोड़ा सा यू हैव चेंज द पैटर्न. आपने पहले नॉन मेरिट प्रिपेयर कर लिया, अब आपका मेरिट बचा है. इन दिस केस ऑल्सो यू डोंट नीड टू वरी. वंस योर एग्जाम साइकिल इज डन, उसके बाद रिगरसली आपको प्रैक्टिस करनी है नाबार्ड के लिए, राइट. आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी ऑन दिस, बट आई विल बी गिविंग यू स्ट्रैटेजी ऑल्सो. So you don't feel out कि okay मुझे करना क्या चाहिए. Especially the people who are fresher, who have never appeared in any government body examination, or they might have in 1-2 examination, but there are no subject common to NABARD. तो आपने JRF दे रखा है, SRF दे रखा है, that kind of exam you have appeared in, NET दे रखा है, तो you have no idea about NABARD. So I will be giving the strategy to those people, also to the people who are not fresher. They actually have appeared in NABARD or any government body examination or in any banking examination. If you fall in this category, the strategy is for you. अगर आप वो हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, then I'll prepare, so you can leave the video right now, right? But for the people who are staying for the strategy, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक कॉमन से कंसर्न की जो कॉमन भी है और डिफरेंट भी है. See, freshers and non-fresher are usually in a tug of war. The freshers say कि okay, I have never appeared in this examination, I don't know about this examination, this examination is tough. The people who have appeared in NABARD, they say कि okay, I have prepared for this examination, I have appeared in this examination, this is tough. So यहाँ कॉमन है कि एग्जाम टफ है, बट डिफरेंस ये है कि हमें लगता है कंपटीशन वाला के लिए इजी है, मेरे लिए हार्ड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ी से एक ना कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा. नाबार्ड इज टफ, इट इज डूएबल, बट इट इज टफ. सो यू नीड टू, वो ना आपके इंटेंट होना चाहिए, वो हार्डवर्क होना चाहिए. दैट इज द ओनली की टू क्रैक नाबार्ड. इफ यू हैव दिस, फ्रेशर या नॉन फ्रेशर या कोई भी बैकग्राउंड डजंट मैटर, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ यू कैन क्रैक नाबार्ड. सो अब मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाली हूं, बट मोर देन अ स्ट्रैटेजी आई विल गिव यू सम इनसाइट कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी. तो यहां मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी कि पहले ये सब्जेक्ट कर, दूसरा ये सब्जेक्ट कर, तीसरा ये सब्जेक्ट कर. दैट आई हैव गिवन इन द पास्ट वीडियो टू. इफ यू आर समबडी जिसको ये एग्जैक्टली चाहिए, यू कैन वॉच द पास्ट वीडियो. बट उससे पहले प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि उस वीडियो को ढूंढने से पहले डू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द गेम बिहाइंड द सब्जेक्ट, व्हाई आई एम सेइंग कि इस सब्जेक्ट को पहले करो, इसको बाद में करो, आपको क्या पॉइंट पता होने चाहिए. दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. विद दिस सबसे पहले मैं सिंपल टिप्स दे देती हूँ उन पीपल को हु आर नॉट फ्रेशर. यू हैव अपीयर्ड इन एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन और नाबार्ड एग्जामिनेशन, और यू माइट बी अपीयरिंग इन RBI दिस ईयर, राइट. सो फॉर दीज पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर वीक स्पॉट, देन get your basics clear. So usually we say कि basics में मत जाना. मैं ये क्यों कह रही हूँ, we will explain, we will talk about this, right. Then focus on the concept of ARD static. Then focus on current affair. Here current affair के लिए जब भी prepare करोगे, the thing that matter is the time and sources. Then oops, don't forget your phase 2 की preparation, that is the descriptive writing, right. Then worry less, दिस इज योर चांस. आई नो कि जब हम एक एग्जाम में अपियर हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन अ गुड रिजल्ट, वो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग होता है. उसके बाद उस एग्जाम से थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, उसमें हम 100% दे ही नहीं पाते हैं. एंड दिस इज द बिगेस्ट वीकनेस
जो आपकी अभी हो सकती है इफ यू आर नॉन फ्रेशर। फ्रेशर आर समबडी हु टेक चांसेस, उनको डर नहीं लगता सब्जेक्ट से, बट हमें लगने लग जाता है जब हम एक दो बार किसी एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। बट लेट मी मेक इट वेरी श्योर, दिस इज योर चांस, यू हैव द नॉलेज ऑफ योर वीक स्पॉट। यहाँ लैक करते हैं फ्रेशर, सो यू नो कि आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। जस्ट डू इट एंड दिस इज योर चांस, दिस इज योर ईयर, you will be able to crack NABARD. Now for the fresher, what I want to say before that, non-fresher के लिए थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, right? So identify your weak subject. How can you do that? See, if you are appearing for any government body examination that have some subject common with NABARD, please be certain क्या आप उन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए थे। वर यू बी एबल टू स्कोर 20, 30, 40% इन दैट सब्जेक्ट, राइट? इफ यू आर अपियरिंग फॉर आरबीआई, प्लीज डू नोट, अगर आरबीआई आपने लास्ट ईयर दे रखा है या नाबार्ड भी लास्ट ईयर दे रखा है, प्लीज डू नोट कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए थे एंड कौन से वो सब्जेक्ट थे दैट यू आर नॉट एबल टू गेट अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आउट ऑफ, राइट? जो आपका कारण बने कि यू आर नॉट एबल टू एक्सेल। इट माइट बी इन फेज 1, इट माइट बी इन फेज 2, इट माइट बी इंटरव्यू, बट यू हैव द नॉलेज ऑफ योर वीकनेस। सो सबसे पहले वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। देन लेट्स से कि यू नो कि मेरा वीकनेस या तो मेरिट सब्जेक्ट हो सकते हैं या नॉन मेरिट सब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट? जो हमारे मेरिट सब्जेक्ट होते हैं दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ फेज 2 ऑल्सो। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है। बट इफ यू नो योर वीक सब्जेक्ट, और लेट्स से अब आपके वीक सब्जेक्ट है नॉन मेरिट, स्पेशली द पीपल हु हैव अपीयर्ड इन एनी अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन, आईबीपीएस पीओ दे रहे हो, एसबीआई वाला एग्जाम दे रहे हो, उस केस में गेट योर बेसिक्स क्लियर। सी ये जो एडवाइस है ना, आई डू नॉट गिव फॉर दी नॉन मेरिट सब्जेक्ट, बट यहाँ वो अप्लाई होती है बिकॉज यू आर अपियरिंग इन दी मल्टीपल एग्जामिनेशन, राइट? जहाँ ये सब्जेक्ट मैटर करते हैं। बट लेट्स से कि आपका बाकी जो आप एग्जाम दे रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन, दे आर योर प्लान बी, प्लान ए आपका अल्टीमेट प्लान आपका नाबार्ड ही है। इन दैट केस ऑल्सो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन फेज 1 में आते हैं, उनके एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर कर लो, उसको अच्छे से कर लो। बाकी को अगर आप नहीं भी करते हो नो प्रॉब्लम, बट जो इंपॉर्टेंट और जो प्रोबेबल टॉपिक है उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए वेरी बेसिक से। ऐसा नहीं है कि तुक्के लगा रहे हो कि ए के बाद सी, सी के बाद डी होना चाहिए, राइट? आफ्टर दैट अगर आप, ये तो चलो नॉन मेरिट का हो गया, अगर मेरिट है अगर वीकनेस, तो उस केस में सी मेरिट में आपका क्या आता है? एआरडी, करंट अफेयर एंड योर जीए, नॉट करंट अफेयर, एआरडी, ईएसआई एंड जीए। ईएसआई में भी आपकी करंट ईएसआई इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए दोनों को जीए को एक साथ मैंने करंट अफेयर बोला, राइट? बट इस केस में आपके लिए दो एडवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एआरडी। अगर आपने नाबार्ड दे रखा है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू क्लियर द एआरडी की कट ऑफ, प्लीज चेक योर रिजल्ट, उसको अपने पास रखो कि ओके दिस इज माई वीक सब्जेक्ट, आई नीड टू कोप अप हियर, राइट? और एआरडी के एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब वो चैप्टर कौन से हैं, क्या है, वो मैंने अगेन पास्ट वीडियो में बताया हुआ है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एआरडी स्टैटिक, राइट? उसको क्लियर कर लो। देन फोकस ऑन द करंट अफेयर। आई नो जो मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन रुकता है वो यहाँ रुकता है, ये भी एक बार के लिए हो जाता है, बट करंट अफेयर इज सच अ पेन पॉइंट। तो उस केस में व्हाट आई वुड से, देखो टाइम लाइन व्हेन वी से ना कि कितने टाइम का नाबार्ड के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, उससे पहले थोड़ा सा स्टिक करो। पहले जितने भी आपके प्रोबेबल नोटिफिकेशन की डेट है उससे पहले के 3 मंथ करो। वंस यू आर डन विद दिस, गो विद द 5 मंथ। इफ यू हैव टाइम देन गो फॉर 6, 8, बट एक साल से पीछे मत जाना। डोंट बी लाइक कि नाबार्ड के 80 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया था। आई एम ऑल्सो काउंटिंग द जीए, आई एम ऑल्सो काउंटिंग द ईएसआई का करंट अफेयर एंड एआरडी का करंट अफेयर, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि 80 तो आते ही नहीं है, राइट? बट लेट्स से कि 80 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, वहां पे यू गेट कि ओके एक क्वेश्चन आ रखा था 2022 में जिसमें ईयर था 2020, तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द करंट अफेयर ऑफ पास्ट 2 years। सी ऐसा कभी नहीं होता कि जो करंट जो आया था क्वेश्चन वो रिलेटेड ही नहीं था करंट से। यू माइट हैव मिस्ड बट इट माइट हैव बीन यू नो कनेक्टेड देयर। बट अगर इसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो फॉर 1 marks यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। वहां पे एक क्वेश्चन की वजह से 1 marks के लिए यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्कोर। वो आपको कंपटीशन में पीछे करेगी, आगे नहीं, राइट? देन सोर्सेज। Now what people do, they start with source A.
सोर्स ए को कर लिया, ठीक है, दे फॉलो इट फॉर 2 वीक 3 वीक, आफ्टर दैट दे सी कि ओके इस सोर्स में ना, इस सोर्स में 80 न्यूज है, इस सोर्स में 81 है, सो दिस सोर्स इज कैंसल, लेट मी स्टडी विद दिस कोर्स। अब मैं इस सोर्स से पढ़ रहा हूं, मैं XYZ मैगजीन से पढ़ रहा हूं, नो नो नो, दिस इज नॉट इनफ, लेट मी स्विच टू न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर पिछले 3 महीने का पढ़ने लग गए हो, सी दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग स्ट्रैटेजी। कोई सोर्स खराब नहीं होता है, वेदर यू आर रेफरिंग टू एनी मैगजीन, वेदर यू आर रेफरिंग टू एनी कोर्स, वेदर यू आर रेफरिंग टू एनी न्यूज़पेपर, ऑनलाइन सोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस, करंट अफेयर है। ट्रस्ट योर सोर्सेज एंड गो विद योर सोर्सेज। बहुत ज्यादा स्विच मत करो सोर्सेज को। ये अगर 2 चीजें इफ यू आर एबल टू मेंटेन, करंट अफेयर आपके कवर भी होंगे, आपको याद भी रहेंगे, राइट। आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट द आंसर राइटिंग। आई नो कि जब भी हम सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं वी यूजुअली स्कोर फॉर, और हमारे आंख में रहता है फेज 1, फेज 2 के लिए हम अपियर नहीं करते, जबकि फेज 2 200 मार्क्स का है, जो कि फाइनल मेरिट में भी मैटर करता है। तो whenever you are preparing for ARD static and current affair, please take a time, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा लो एंड ट्राई टू राइट 1 आंसर। थोड़ा उसको स्लो करो, इन 15 मिनट बी एबल टू राइट आंसर और सम काइंड ऑफ टाइपिंग और सम काइंड ऑफ इनपुट। इफ यू आर somebody who make note, that is also good, but try to make note in such a way that it can be used in descriptive answer writing। ये थोड़ा सा अलग तरीका है, but it will help you। Again, this is your chance to clear NABARD, don't waste this opportunity, right? And one thing, यहाँ आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी? See, if you have that intention कि ठीक है मुझे NABARD करना है, it doesn't matter मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे सोना 8 आवर्स की जगह 7 आवर पड़ रहा है, 6 आवर पड़ रहा है, but I'll put an effort in। ठीक है, मुझे बाकी चीजें छोड़नी पड़ रही है, मुझे रील देखना छोड़ना पड़ रहा है, गेम खेलना छोड़ना पड़ रहा है, मैं नाबार्ड पढ़ रहा हूँ, सी वो काउंट होता है। हियर योर इंटेंशन इज हाउ मच सीरियस यू आर फॉर नाबार्ड, आप कितना हार्ड वर्क करने को तैयार हो, दैट मैटर्स। उससे ऊपर कोई सोर्स, कोई स्ट्रैटेजी, कोई कोर्स नहीं है। इफ यू डोंट हैव दिस, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू। अगर आप सीरियस ही नहीं हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। Now let's talk about the people who are totally fresher in this game, जो नाबार्ड अभी देंगे और या फिर नाबार्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन पहले नहीं दे रखा है, नो बैंकिंग एग्जामिनेशन और सो लेट्स टॉक अबाउट यू। सो फॉर यू माय हम्बल टिप्स विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ एग्जाम, व्हाट आर दीज डिटेल वी विल डिस्कस एंड हाउ यू कैन सॉल्व दिस, वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। देन सॉल्व द PYQs, देन कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड उन्हीं को प्रिपेयर करो, उनसे ज्यादा मत जाओ। अगेन आई हैव एक्सप्लेन दिस हियर, बट ये आपके केस में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू हैव लेस नॉलेज ऑफ सोर्स, कि कौन से सोर्स ट्रस्टेबल हैं एंड कौन से नहीं है, उनको कितना करना है, राइट। सो गेट द नॉलेज ऑफ दैट। ऑल्सो फोकस ऑन द मेरिट सेक्शन फर्स्ट। मेरिट सेक्शन क्या होता है, नॉन मेरिट सेक्शन क्या होता है, यू विल अंडरस्टैंड इट हियर, राइट। देन नॉन मेरिट सेक्शन की प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, करना है, बट उसके लिए डू इट स्मार्टली, हैव गिव लिमिटेड टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन अ टाइम बाउंड मैनर। देन don't forget the answer writing, the same tip I give to the people who are not so fresh in NABARD's game। तो अगर नाबार्ड फर्स्ट टाइम देते हो, everybody will tell you what is important for phase 1, but please don't forget phase 2। So this is the basic thing that you understand, need to know। जो एक चीज आपके फेवर में है, that is your energy। इफ जो आपकी फ्रेशर वाली एनर्जी है कि ओके आई वांट टू क्रैक नाबार्ड एंड आई विल डू इट, इफ यू आर एबल टू टेक दिस एनर्जी इन राइट डायरेक्शन, एक अटेम्प्ट में नाबार्ड होना बहुत पॉसिबल है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, ये वंस इट इज लॉस्ट ना, इट इज लॉस्ट, राइट। तो दिस इज योर चांस। उनको पता है उनकी वीकनेस, यू नीड टू नो दैट ऑल्सो। सो ऑप्टिमम अमाउंट में अपनी एनर्जी को राइट टाइम और राइट सोर्सेज के साथ नाबार्ड क्रैक करने की डायरेक्शन में ले जाओ, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ नाबार्ड, आई मीन नो कि पैटर्न क्या है, कितने फेजेस होते हैं नाबार्ड में, उनमें क्या क्या टाइमिंग रहती है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन सब्जेक्ट्स,
I have talked the non-merit and merit subject. What are these subjects? Have the understanding of these. If you're somebody who is spending whole time कि okay मुझे computer knowledge complete करनी है 100%, ARD ESI को मैं दे दूंगा 1 week 2 week, you are making a mistake. And why? You will come to know when you will understand the merit and non-merit. Then cut off पता करना इंपॉर्टेंट क्यों है, सो दैट यू आर एबल टू नो अगर नॉन मेरिट भी है तो कितना स्कोर करना पड़ेगा, सो दैट यू आर एबल टू नो द सेफ स्कोर. देन एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी इन सेंस ऑफ एज एज वेल एज एजुकेशन. क्या आपकी ग्रेजुएशन के लिए आप नाबार्ड दे सकते हो कि नहीं? मोस्टली दे सकते हो, सारी ग्रेजुएशन से दे सकते हो नाबार्ड. देन मार्क्स कितने होने चाहिए, क्या अदर कंडीशन है, स्पेशलिस्ट क्या होता है, जर्नलिस्ट क्या होता है, वो सब आपको पता चलेगा एलिजिबिलिटी में. देन वर्क प्रोफाइल. इज नाबार्ड एक्चुअली फॉर यू? नाबार्ड करता क्या है? Just for the salary, don't come and prepare for NABARD. Understand the job profile. It is very vibrant. NABARD अच्छा ही लगेगा आपको, but see, knowing the work profile ना, you will be more motivated. ये demotivate नहीं, motivate करने के लिए है, right? Then the syllabus. कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो कितना घटा, यू माइट बी फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, बट ARD सुन के इफ यू ओनली प्रिपेयर फॉर एग्रीकल्चर एंड डू इट इन डेप्थ, इट विल सर्व यू नो गुड. यू विल कम टू नो कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सब आ रहा है, राइट? सो अंडरस्टैंड द सिलेबस. उसके बाद जो सबसे पहली चीज आपने कर दी, ठीक है, आई नो कि ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो देख ली, मुझे समझ में आ गई. आफ्टर दैट वेयर शुड आई स्टार्ट माई एक्चुअल प्रिपरेशन? सो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू, become non-fresher. How you can do that? Go solve the PYQ. Yes, previous year questions जो आपके हैं उसको solve करो. Understand कि आपकी weakness कहाँ है, right? Once you are done with that, you will not be a newbie to the NABARD. ठीक है, आप फ्रेशर नहीं रह जाओगे नाबार्ड को. यू विल हैव द सेम एक्सपीरियंस एंड सेम नॉलेज दैट यू नीड, जो कि उन बच्चों को है दैट हैव गिवन नाबार्ड 2-3 times. देन कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड डिफाइंड. बट ये सोर्सेज क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके लिए व्हाट यू कैन डू. सो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव वेयर वी हैव लॉन्च्ड एन अल्टीमेट गाइड बुक, लिंक फॉर विच यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हियर इन दिस गाइड बुक you will get complete knowledge of patterns, syllabus, strategy, previous year question भी आपको मिलेंगे. You just have to register yourself in the link given below. And most importantly, this guidebook is absolutely free for you all. So कुछ पे भी नहीं करना है, knowledge आपको full मिल रही है. So my recommendation, go download this guidebook. Now continuing with the advice. See, आपको once you know your weak areas and your strength, अब आपके weak areas कहाँ हो सकते हैं? First of all, focus on the merit section. So what is your merit section? तो ये आपके non merit section होते हैं. इसके अलावा the important section are your ARD. Understand the term ARD. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. खेती बाड़ी जो करते हो, क्रॉप प्रोडक्शन जो करते हो, और जो एलाइड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब आपका एग्रीकल्चर के अंदर आता है. ये आपने पढ़ना है एग्रीकल्चर में. रूरल डेवलपमेंट में जो हमारी रूरल पॉपुलेशन, आर्टिसन वगैरह है, उनके बारे में भी आपने पढ़ना है. दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड करंट पॉइंट ऑफ व्यू. एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम और करंट अफेयर भी आपने पढ़ने हैं, एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स एंड करंट अफेयर भी आपने पढ़ने हैं. Then coming to the second subject of merit, ESI. So when I talking about the ESI is your economics and social issues. यहाँ भी नाम से ही पता चल रहा है. Understand the term. Economics मतलब आपके ग्रोथ की स्टेज में हो रही है, देश किस दिशा में जा रहा है. Understand this. हमारा GDP कितना है, रूरल पॉपुलेशन, हर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है. एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म कर रहा है. Understand this, right? इकोनॉमिक्स समझो, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने की. How different factors are affecting the agriculture. Then social issues, again this, ये थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है. What are the social issues seen by the rural population? पॉवर्टी है वहां पे भाई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ का इशू रहता है, पानी नहीं मिल रहा है. इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी डेवलपमेंट है, रिपोर्ट्स हैं, उसको एलिवेट करने के लिए चीजें हैं, वो सब आपकी इंपॉर्टेंट है अंडर ESI, बोथ करंट और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से. करंट फेज 1 के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट फेज 2 में यू विल सी कि ESI के स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड. और सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी.
नाउ ये तो हो गया, आपको ARD एंड ESI अच्छे से करनी है, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ARD का स्टैटिक, मूविंग टू ESI का स्टैटिक, देन मूविंग टू द करंट ऑफ बोथ ARD एंड ESI, जिसमें डू स्कीम फर्स्ट, देन डू द रिपोर्ट, देन डू द करंट डेवलपमेंट. Coming to the next advice is non-merit section. See, whenever you are preparing for non-merit section, do this in a very time bound manner. Now what do I mean by this? See, जो आपके non-merit subjects हैं ये, इनमें you will only have to clear the cut off, जिसमें इंग्लिश में कट ऑफ ऑलमोस्ट 50% जाती हैं, बाकियों में इफ यू आर एबल टू स्कोर 30% मार्क्स, यू आर गुड टू गो. 30% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है. डिसीजन मेकिंग में तो इवन 10 में से काफी बार 1.5 गई है कट ऑफ, तो 2 यू कैन एक्सपेक्ट, बट अगेन एक्सपेक्टेशन है, इसी को लेके मत चलना कि 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं आने, राइट. डोंट मेक दिस मिस्टेक. बट इंग्लिश में आपको स्कोर करना पड़ता है एटलीस्ट 50%. वो भी इंग्लिश ऐसा है कि बेयर मिनिमम 50. अगर सेफ साइड पे रहना है तो 60, 65, 70 यू विल हैव टू स्कोर. इसके अलावा इफ यू आर एबल टू डू 30% इन द अदर सब्जेक्ट, यू आर गुड टू गो. 50% कर लेते हो तो सुपर सेफ हो, राइट. बट जब भी इनकी प्रैक्टिस करो, फर्स्ट ऑफ ऑल डू चेक कि इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. इफ यू डायरेक्टली जंप की क्वांट में A to Z सब कर दूं, सो वो नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है. थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉन मेरिट, मेरिट. जब बाकी की चीजें देखोगे यू विल कम टू नो कि क्वांट्स को मैंने कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करने हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. बेसिक आपने समझ लिया, उसके बाद सॉल्व मोर क्वेश्चन इन अ टाइम बाउंड मैनर. ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन लेके 4 क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज ऑफ नो यूज. आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट. देन इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, सेम थिंग, टाइम बाउंड मैनर में आपको MCQ सॉल्व करने हैं. इंग्लिश इज समथिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू एबल टू स्कोर गुड. यहाँ केवल रटने से, पढ़ने से, इन 3 सब्जेक्ट में नथिंग विल हैपन. क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर्स मोर. डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज में अगेन थोड़े से आपको बेसिक पढ़ने पड़ेंगे. ऑफकोर्स ये सिर्फ क्वेश्चन से नहीं होगा, थोड़े से बेसिक पढ़ो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे आपको रिटेंशन में हेल्प मिलेगी, राइट. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. Now, talking about the answer writing. Again, when you are practicing the merit subject, do practice your answer writing. कहाँ से स्टार्ट करोगे इसको? डू चेक द टेक्निकलिटीज. हमारी यूट्यूब वीडियोस में यू विल सी टेक्निकलिटीज, और जस्ट नो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, फिर बॉडी पार्ट कैसे लिखते हैं, फिर कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, दैट यू विल कम टू नो, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. पहले टेक्निकलिटीज समझो, देन स्टार्ट विद राइटिंग समथिंग वेरी इजी. इफ यू हैव नेवर रिटन समथिंग ना, स्टार्ट विद राइटिंग की मेरे बारे में, आई विल राइट 4 लाइन ऑन माई सेल्फ, देन आई विल राइट 4 लाइन ऑन माई फेवरेट ट्री. Start like this and slowly move into the course. कि course के बारे में I will write 4 lines. कि ARD का, let's say I'm reading agronomy now, so let me write 4 lines on agronomy. Start with this and slowly build up to write the whole answer of 400 and 600 words, right? After that, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करो. इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, कोर्सेज नॉट कोर्सेज, सोर्सेज की अच्छे से नॉलेज लो कि व्हाट आर योर सोर्सेज, उन सोर्सेज में से क्या क्या पढ़ना है, ये क्लैरिटी. इफ यू वेस्ट योर एनर्जी ऑन द यू नो थिंग्स दैट डजंट एक्चुअली मैटर फॉर योर एग्जामिनेशन, वो आपको हेल्प नहीं करेंगी. Then you will be blaming कि मैं fresher था इसलिए नहीं हुआ. That will be a excuse. You have the knowledge if you have solved the PYQ. So PYQ solve करो, एग्जाम को समझो, उसके बाद you will not be a fresher. अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करो, right? So I hope this is very much clear now. For the people who are interested in the EduTabs course, क्योंकि again ना sources when I refer to, if you're somebody source समझ में नहीं आ रहे, in that case the courses can be of huge help. Talking about the course, right? So we have 2 courses for NABARD. If you're interested, please do watch it. If you're not, feel free to leave, no problem, right? But we have gold pack that will help you prepare for all phase of NABARD, be it phase 1, phase 2 or interview. Here you will get complete coverage of all the subjects that we have just discussed, right? If I talk about the silver, let's say if you're already preparing for some other body examination, you don't need help with phase 1, but phase 2 में जो merit subject ESI ARD है, that is a pain point for you. You want to know more current. इस cases में you will get the complete coverage of phase 2, जिसमें आपके ESI ARD and GA जो है वो phase 1 में भी आते हैं. So यही है आपका pain point. आपको non merit subject में कोई help नहीं चाहिए. In that case I would recommend
रिकमेंड यू डू चेक द सिल्वर पैक, राइट। अब आपको ये कोर्स कहाँ से मिलेंगे, गो इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको मिल जाएगा, डू चेक इट। कुछ लेसन फ्री है, जो भी मटेरियल फ्री है, PYQs दैट आई सेड वो टोटली फ्री है। डू डाउनलोड इट, चेक इट, देखो कोई कुछ चीज कॉस्ट नहीं हो रही, सो इट विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन, डू स्टार्ट इट, राइट। सो दैट इज इट फॉर द video. I hope you like this video. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and you can also join our Telegram channel for the update or for the PDF of the content that we provide. So that was it. Thank you so much. If you get any doubt or any query, do write in the comment section, and you can also contact us, write to us in our official email ID for any questions. So that will be it. I hope you will have a nice day.